بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد عاصم مدنی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج بیٹا ہم کلاس 9 کے لیے لیکچر نمبر 12 جو کہ آپ کے سلیبس کا نثری سبق نمبر 5 جس کا نام ہے نصوب اور سلیم کی گفتگو لے کر حاضر ہیں آپ کے سامنے. تو میں تمام اسٹوڈنٹ سے کہوں گا کہ آپ اپنا رف رجسٹر اور کتاب لے کر اچھے سے لیکچر کو سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اس کو ریڈ کریں. تو آئیے سب سے پہلے ہم مصنف کے تعارف سے سٹارٹ کرتے ہیں. نصوب اور سلیم کی گفتگو یہ ایک ٹاپک ہے اور یہ ایک ناول ہے جس میں مصنف نے کچھ سبق ہم سب کو دینے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے. تو سب سے پہلے مصنف کا تعارف ہم دیکھتے ہیں. کتاب پکڑ کے آپ کو سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی کتاب سے ہی پھر اسی طرح کام کریں تاکہ آپ کے سلیبس کا جو سبق ہے وہ اچھے طریقے سے حل ہو جائے. تو مصنف کون ہے؟ اس کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ہیں. یہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ 1831 میں پیدا ہوئے ہیں. کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ ضلع بجنور. ضلع بجنور میں پیدا ہوئے ہیں. ان کے والد کا نام مولوی سعادت علی تھا. ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے والد سے حاصل کی ہے. پھر اس کے بعد دلی میں داخلہ لے لیا. فارغ التحصیل ہونے کے بعد یہ گجرات میں ایک اسکول کے اندر مدرس مقرر ہو گئے. پھر اس کے بعد ڈپٹی انسپیکٹر مدارس مقرر ہوئے ہیں. پھر اسی طرح یہ انڈین پینل کوڈ کے ترجمے کی وجہ سے پہلے تحصیلدار اور بعد میں افسر بندوبست بنے، یعنی بڑے افسر بن گئے. سالار جنگ کے ایما پر، یعنی کہ جو سپہ سالار ہوتا ہے جنگ کا، اس کے ایما اشارے پر انگریزی ملازمت چھوڑ کر حیدرآباد دکن کی ملازمت اختیار کر لی اور پھر اسی طرح جو ہے وہ اپنی خدمت سر انجام دیتے رہے. اور اس کے بعد دلی آ گئے اور بقیہ زندگی پھر انہوں نے دلی میں گزاری. اس وجہ سے ان کو دہلوی بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے اصلاحی ناولوں کا بیڑا اٹھایا ہے اور مسلمانوں کی اصلاح کا کام کیا. پھر اسی طرح جو ان کے ناول ہوتے ہیں ان کے اندر مقصدیت ہوتی ہے، ان کے اسلوب بیان کی لطافت ہوتی ہے، چاشنی کو ختم نہیں ہونے دیتے. ان کی زبان علمی بھی ہے، عوامی بھی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ کیا کرتے ہیں؟ معاشرتی محاوروں کا استعمال کرتے ہیں، بالخصوص عورتوں کی مخصوص زبان، محاوروں، مکالموں کہ یہ استاد تسلیم کیے گئے ہیں. اور اگر اردو کے ارکان خمسہ کی بات کریں، یعنی ارکان خمسہ 5 ضروری جز جو ہیں اردو کے لیے، ان میں سے ایک یہ ہیں. یعنی 5 افراد اگر ہم یہ دیکھیں کہ اردو کے 5 افراد کون کون سے اہم ہیں، تو ان میں سے ایک یہ ہیں. اور اردو کے اول ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد دہلوی صاحب ہیں. ان کے ناول بہت مشہور ہیں: میرات العروس، مینات الناش، توبۃ النصوح، صالح مبتلا، رب الوقت. یہ زیادہ اہم ہے اور بالآخر ان کی وفات 1912 میں ہوتی ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے چند ایک چیزیں لکھی ہوئی ہیں، باقی میں نے آپ کو بیٹا پڑھ کے بتا دی ہیں. تو ہم اس سبق کی ریڈنگ کریں گے. میں لفظ ٹو لفظ ریڈنگ نہیں کروں گا کہ لیکچر بہت زیادہ پھر طول پکڑ جاتا ہے. میں آپ کو اس سبق کا کچھ اوور ویو کرواؤں گا. پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ لیکچر سننے کے بعد آپ نے سبق کی ریڈنگ کرنی ہے، متعلقہ گرامر سے آپ نے خلاصہ کرنا ہے. جب یہ دونوں چیزیں آپ کر لیں گے، اسپیشلی جب آپ سبق کی ریڈنگ کر لیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مشق خود بخود حل ہو جائے گی. دلی میں ایک سال ہیضے کی وبا پھیلی. جب سب سے پہلے ہم الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں دقت نہ ہو. وبا کہتے ہیں بیماری کو، عاقبت آخرت کو کہتے ہیں، خواب آور نیند والی، یعنی جس سے نیند زیادہ آتی ہے. ہڑبڑا کر اٹھنا، خوف زدہ ہو کر اٹھنا، پریشان ہو کر اٹھ جانا. قول قرار ہونا، وعدہ مقرر کرنا، یعنی وعدہ کرنا ایک دوسرے کے ساتھ. خفا، ناراض، صورت سے، شکل سے. گنجفا ایک کھیل ہے جس میں 96 پتے ہوتے ہیں اور 3 کھلاڑی ہوتے ہیں. اور شطرنج بھی ایک کھیل ہے جس میں 64 خانے ہوتے ہیں اور 32 مہرے ہوتے ہیں. یہ بھی لوگ کھیلتے ہیں. اطمینان سکون کو کہتے ہیں. مبتدی ابتدا کرنے والا. تعجب حیرانی. اصلی سبب اصل وجہ دیوانہ پاگل. چلیں اس کے بعد والے یہ بھی پڑھ لیتے ہیں.
बैठ गई हो। चोलियां, कमीज को कहते हैं कमीज, असल लफ्ज कमीज होता है बरस, साल, कानो कान खबर ना होना, किसी को बिल्कुल पता ना चलना, कोड़ियों, बीसियों या कई, वास्ता, ताल्लुक। फिर इसी तरह बेटा आमोख्ता सबक को कहते हैं नाखुश होना, नाराज होना, कमबख्त, बदबख्त, बसर और चश्म, सर आंखों पर, तख्त नमाज पढ़ने का जो मेज होता है, मखसूस तख्ता होता है लकड़ी का, उम्र दराज हो, उम्र लंबी हो, जता देना, आगाह करना, इसरार करना, बार बार कहना। ये कुछ मुहावरे भी हैं, किसी पर आवाजा कसना, बुरा भला कहना, गाली गलौज निकालना, जमीन में गड़ जाना, बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना। तो चलिए हम सबक की बात करते हैं। मैं आपको ओवरव्यू करवाऊंगा और ये आपको अल्फाज मानी भी मैं स्पेस दे रहा हूँ, नजर आ रहे हैं तो आप इनको दोबारा से देख सकते हैं। दिल्ली में एक साल हैजे की सख्त वबा यानी बीमारी फैल गई, तो नसूह भी दीगर अफराद की तरह इस बीमारी में मुब्तला हो गया। डॉक्टर ने चेकअप किया तो उसने ख्वाबावर दवा दे दी। फिर इन्होंने क्या किया, मायूसी के आलम में ये सो गए तो ख्वाब में आखिरत के मनाजर दिखे। हड़बड़ा कर खौफजदा होकर उठ बैठे। ख्वाब से बेदार होकर इनको ये ख्याल आया कि अपने बच्चों की और अपने घर वालों की इस्लाह करनी चाहिए। इन्होंने अपनी बीवी जिनका नाम फहमीदा था, उनको अपने ख़ानदान की इस्लाह यानी उनको दुरुस्त करने के लिए मददगार बनाया, यानी उनको शामिल कर लिया और कहा अपनी बीवी को कि हम मिलकर अपने ख़ानदान की, अपने बच्चों की इस्लाह करेंगे। ठीक है जी, आज ये वादा वही हो गया, कौलो करार तय पाया और अगले दिन ही छोटा बेटा जिसका नाम सलीम है उसको बेदारा ने आज गाया। बेदारा कौन है, एक नाम यूज किया गया है यहाँ पर, बेदारा जगाने वाली। ठीक है, साहबजादे उठिए यानी बेटे उठिए, बाला खाने पर छत पर आपको मियाँ बुलाते हैं। ठीक है जी। और सलीम की उम्र उस वक्त कितनी थी, कुछ कम 10 बरस थी। जब उसने तलब की खबर सुनी तो घबराकर उठ खड़ा हुआ और जल्दी जल्दी से हाथ मुंह धोकर माँ के पास पहुंचा और कहा कि अब्बा जान आज मुझे इस तरह अचानक क्यों बुला रहे हैं, कोई बात तो नहीं होगी, वो खफा तो नहीं है, नाराज तो नहीं है। ठीक है, तो फिर माँ पूछती है बेदारा से कि तुम ऊपर क्या करने गई थी, तो उसने कहा कि मैं ऊपर रोटा लेने गई थी और मियाँ अकेले बैठे किताब पढ़ रहे थे, मैं आने लगी तो उन्होंने कहा कि सलीम को भेजो। ठीक है जी। तो फिर उसने सलीम ने कहा कि शक्ल से कोई गुस्सा तो नहीं मालूम होते थे, तो उसने कहा आगे से कि नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर अम्मा जान ने कहा कि तुम बेटा चले जाओ, डरते क्यों हो, कुछ पूछेंगे तो जो भी पूछेंगे उनका माकूल जवाब दे देना, मुनासिब जवाब दे देना। ठीक है। बिलाखिर ये सलीम डरता डरता ऊपर चला गया, सलाम करके अलग जाकर खड़ा हुआ तो बाप ने सवाल जवाब शुरू कर दिए कि आज तुम मदरसे क्यों नहीं गए। उसने कहा बस मैं भी जाता ही हूँ। ठीक है। उसने कहा तुम अपने भाई के साथ क्यों नहीं जाते, उसने कहा कभी कभार चला जाता हूँ, लेकिन उनके अगले महीने इम्तिहान होने वाले हैं तो वो जल्दी जल्दी अपने हम जमात के घर चले जाते हैं और वहाँ जाकर पढ़ते हैं। मैं जाता हूँ तो वो मदरसे में मौजूद होते हैं। तो फिर उसने बाप ने कहा कि क्या अपने घर में पढ़ने के लिए जगह नहीं है, जो दूसरों की जगह जाते हैं। तो बेटे ने कहा कि जगह तो है, मगर वो कहते थे कि यहाँ बड़े भाईजान के पास हर वक्त गंजफा और शतरंज यानी ये खेलें मौजूद होती हैं, तो मुझे स्कूल से पढ़ा नहीं जाता, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। तो ये आप सारा पढ़ेंगे आगे। उसने कहा कि तुम शतरंज और गंजफा क्यों नहीं खेलते, तो वो फिर आगे बताता है कि मुझे इसकी कभी जो है वो हाजत नहीं हुई, मुझे इसका शौक ही नहीं है। तो बाप ने फिर कहा कि ये लगता है ये मुश्किल खेल। उसने कहा मुश्किल नहीं है, मेरा दिल ही नहीं करता, मैं इसको कभी खेल ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा दिल खेलों से उचाट हो चुका है। मफहूम आपको बता रहा हूँ, आप जब लफ्ज़ टू लफ्ज़ खुद रीड करेंगे बेटा तो आपको बात समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जो मैं कह रहा हूँ ऐसा ही है। तो फिर बाप ने कहा कि शतरंज में तबीयत पर जोर पड़ता है और गंजफे में जो है वो गंजफा खेल में हाफजे पर यानी जहन पर जोर पड़ता है। तो बेटे ने कहा कि मेरी जो नापसंदीदगी की वजह है वो ये नहीं है, बल्कि मुझे सारे खेल बुरे मालूम होते हैं। तो फिर बाप ने कहा कि तुम्हारी इस बात पर मुझे हैरानी हो रही है कि तुम्हारी नापसंदीदगी का असल सबब क्या है, असल वजह क्या है। क्योंकि शायद अब से 5 या 6 महीने पहले जिन दिनों में बाहर के मकान में
बैठा करता था, मैंने खुद देखा कि तुम तो हर तरह के खेल खेलते थे, अब तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा, बेटे ने कहा कि आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं हमेशा खेल के पीछे पागल बना रहता था, दीवाना बना रहता था, लेकिन अब मुझे खेलों से दिली नफरत हो गई है। तो बाप ने कहा कि बेटा इसका क्या सबब है? उसने कहा कि 4 लड़कों को आपने देखा होगा जो बगल में किताबें दाबे, यानी बगल में किताब दबाए गली में आते जाते हैं, वही जो गोरे गोरे 4 लड़के एक साथ रहते हैं। फिर हुलिया बताया है कि उनकी जूतियां बैठी हुई हैं, मुंडे हुए सर हैं, ऊंचे पजामे हैं, नीची चोलियां यानी कमीजें, लंबी कमीजें वो पहनते हैं। तो बेटे ने कहा हाँ। तो फिर बेटा कहता है कि आपने कभी उनको कोई शरारत करते देखा है? बाप कहता है कभी नहीं बेटा। फिर आगे क्या कहता है? उसने कहा कि जनाब कुछ अजीब आदत है उन बच्चों की, वो राह चलते हैं तो नजरें नीचे झुकाकर चलते हैं, बड़ा मिल जाए जान पहचान हो या ना हो सलाम करते हैं। कई बरस से मोहल्ले में रहते हैं, किसी को कानों का खबर नहीं है, मोहल्ले में 20 लड़के हैं, लेकिन उनको ना कभी झगड़ा करते देखा है, ना गाली बकते, ना कस्में खाते, ना झूठ बोलते, ना किसी को छेड़ते, ना किसी पर आवाज़ कसते हैं। हमारे मदरसे में पढ़ते हैं, वहाँ भी उनका यही हाल है, कभी उनकी किसी ने शिकायत नहीं की। 1:30 बजे 1 घंटे की छुट्टी होती है तो फिर सारे लड़के खेल कूद में हो जाते हैं। मसरूफ तो ये क्या करते हैं, ये मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाते हैं। तो बाप कहता है फिर, तो बेटा कहता है कि जो दरमियान वाला मंजला लड़का, दरमियान वाला लड़का, वो मेरा हम जमात है। एक दिन मुझे सबक याद नहीं था तो मौलवी साहब ने बहुत डांटा, नाखुश हुए वो, और उसकी तरफ इशारा करके कहा कि घर से घर मिला है बदबख्त, कम वक्त, तुम इसी से कुछ सीख लो, इसके पास जाकर याद कर लिया करो। तो मैंने उससे पूछा कि हाँ भाई याद करवा दिया करोगे? तो उसने आगे से कहा बस सरो चशम। बस सरो चशम ये एक मुहावरा है, कह लें छोटा सा। बस सरो चशम का मतलब है सर आंखों पर कि आपका हुक्म सर आंखों पर मैं मानता हूँ, ठीक है जी। तो गर्ज में अगले दिन उनके घर गया, ठीक है, आवाज दी उन्होंने, मुझे अंदर बुला लिया, देखा कि एक बूढ़ी औरत जो है वो तख्त पर बैठी हुई, यानी कि लकड़ी के तख्त पर बैठकर नमाज पढ़ रही है, ठीक है। वो लड़कों की नानी है, उनको हजरत भी कहते हैं। मैं सीधा सामने दालान में, यानी जो बरामदा होता है, अपने हम जमात के बाद जा बैठा। जब हजरत भी अपने पढ़ने से फारग हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा वो तुमने मुझको सलाम नहीं किया, लेकिन जरूर है कि मैं तुमको दुआ दूं, जीते रहो, उम्र दराज हो, खुदा नेक हिदायत दे। उनका ये कहना था कि मैं गैरत के मारे, शर्म के मारे जमीन में गड़ गई, मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हुई, ठीक है। और फौरन मैंने उठकर अदब से सलाम किया। हजरत ने फरमाया बेटा तुम बुरा मत मानना, ये भले मानसों का, यानी शरीफ लोगों का दस्तूर है, तरीका है कि अपने से जो बड़ा मिले उसे सलाम करें। मैं तुमको ना टोकती, लेकिन चूंकि तुम्हारा बैठना मेरे बच्चों के साथ है तो इसलिए मुझे तुम्हें समझा देना जरूरी था, जता देना जरूरी था। इसके बाद हजरत भी ने मुझको मिठाई दी, बहुत इसरार करके खिलाई। मुद्दतों यानी बहुत अरसे तक मैं उनके घर जाता रहा। हजरत भी मुझे अपने नवासों की तरह ही चाहने लगी और प्यार करने लगी, मुझको हमेशा नसीहत किया करती थी। तभी से मेरा दिल जो है वो खेल की बातों से खटा हो गया है, उचाट हो गया है। दिल खटा होना यानी कोई चीज बुरी लग जाना, तौबा नसूह इस सबक का माखज़ है। तो इससे हमें ये पता चला कि अच्छी सोबत इंसान को अच्छा बना देती है। तो हमें भी अच्छे लोगों की अच्छे जो है वो दोस्त बनाकर सोबत इख्तियार करनी चाहिए, नेक लोगों की सोबत इख्तियार करनी चाहिए, ताकि वो सोबत का असर इंसान की शख्सियत में हो। तो इसके बाद बेटा मशक है। आप देखें मशक में जो अब आप रीडिंग कर लेंगे तो सारे शॉर्ट क्वेश्चन हल हो जाएंगे। उसके बाद कुछ अल्फाज के जमा बनाने हैं आपने, इराब है, खाली जगह पूर्ण करेंगे आप। और इसी तरह एमसीक्यूज हैं, तस्लीम को किसने आकर जगाया, बेदारा ने। जब आपने खुद रीडिंग की होगी तो ये इंशाअल्लाह ताला जल्दी से हल हो जाएंगे। नावल क्या होता है? नावल वो कहानी होती है जो हकीकत पर मबनी होती है। इसमें जिंदगी का कोई एक दौर इस तरह पेश किया जाता है कि वो अपने तमाम रंगों के साथ मौजूद होता है। कहानी के वाक़यात में बहाव में एक फितरीपन होता है, यानी फितरतन जैसे रियलिटी में चीजें होती हैं, इस तरह नावल में भी हकीकत की बुनियाद पर बात की जाती है। तो ये बेटा आपका लेसन नंबर 5 जो है, जो कि नुसू और सलीम की गुफ्तगू है, ये भी बेटा कंप्लीट हो गया है। आपने इसको अच्छे से देख लेना है। ये मैं आपके लिए स्क्रीन खाली कर रहा हूँ ताकि आपको व्हाइट बोर्ड पर तमाम अल्फाज मानिएगा फिर से नजर आ जाए। अच्छे तरीके से आपने बेटा इस सबक को रीड करना है, इसका खुलासा करना, मुतल्लिका जो है वो ग्रामर से आप मदद ले सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आप